Hello everyone, welcome to the another episode of Rise Talks. Today we are here with Mr. Utkarsh Kapoor who has studied psychology from DU. So today we will be having a word about why talking is necessary. Thank you so much, Taina, for having me at the platform. And last time as well, since I've been here. So first of all, I would like to thank the organization to be consistent with me and to calling me again. So yeah, we may proceed with the same. So first I would like to ask, why do we actually think people hesitate to talk about their feelings? See, this is one of the very prevalent and important thing that I believe that people hesitate. Why? Because there are certain levels where they believe that if they'll be opening up, so there might be a possibility that the person whosoever they are talking to, that particular person will not be able to understand them, or they won't be having that good connect with the person who has been talking with them. So this is one of the major reasons why they feel hesitate, and at times they do not feel like opening up, as if they do not know what exactly the reaction of the other person would be. How does talking help in reducing emotional burden or stress? Yeah, it is like in today's, like take for an example, the Gen Z terms, if we would talk about, the more went out mechanism will be there, I believe. If we will talk more, like take for example in your age, the people they preferably do not talk, especially with the people who can assist or guide them better. Agreed. But the people do not talk. Why? Because there is certain slight possibility that the other person might not be able to understand the situation, whatsoever we are suffering from or something like that. Take for example, if we can talk about you only, right? There had been certain situations where you had been through a couple of things, so you must have dealt with it. But has it ever happened that you have tried to have a word, or maybe you haven't had a word? Yeah, for much time I didn't went to anybody, but I tried to go to a counselor and then I felt better. So I realized talking is necessary. But that is very fine. So that is the moment when you have realized this thing. But post that particular thing, this must have had happened that after the counselor, every time you do not need a counselor as well, right? So at times you do not even have that much amount of availability of the counselor. So what do you do in that particular case? I deal in my own terms. I have my coping mechanism and I try to escape from that problem. Do you believe escapism is a good thing? No, it's not, but that's how I cope up. It is more of that phrase that is in Hindi कि भाई आंखें बंद कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो that doesn't mean कि danger खत्म हो गया, right? तो मतलब may I know the coping mechanism that you might be having? I sleep or I listen to songs or I write in diaries, so I feel better. You feel better. So, ठीक है, every person has their different ways to cope up with the situations. So do you believe talking can prevent misunderstandings in relationships? This is a very good, very important thing. Take for example, if two people are there, not only I'm talking about the romantic relationship. It is about the relationship between the people. Take for example, a friendship is there, or the brother and sister relationship is there, or brother relationship is there. So the more they talk, right? So eventually this, take for example, both of us are there. Yeah, you are a student, I am a teacher of yours. If you have not understood a concept of mine, I am teaching a class, but you haven't conveyed that particular thing to me. We haven't had a word regarding that particular thing. So how will it be even possible for me to actually understand the fact that Taina hasn't understand that particular thing, so that I can work on that? So until you will not be able to deliver that particular problem of yours, or you will not be having any talking with a person with whomsoever you have a problem, how will that particular person will be able to understand what exact the problem is, what the clarification has to be done upon, and all these things. But I think that in today's scenario, specifically I am targeting your age people only, that people believe that the other person has to understand themselves, that they will have to understand what exactly the situation or the problem is. I won't talk or I won't convey, because that will put down my ego. So I believe this must have happened to the people, or maybe you are laughing, okay, you are accepting that particular thing, that this must have had happened earlier as well. Ki bhai, people, when they initiate talking at times with the people, with the person or whosoever
they want to get the clarification, but they feel that the other person will start first. I won't do so, Yeah. because this eventually will put up that my ego has been reduced. Everybody have ego these days. Indeed, that is the thing. But I believe that until the talking or maybe the clarification, it is one of the best. This is the thing that I always tell people, that conversation is very necessary, whatsoever the situation is. Right? Take for an example, just I do not want to जिसे कहते हैं, I do not want to sound this particular thing as थोड़ा controversial, but a couple of years back there has been an issue in Supreme Court regarding the Babri Masjid and Mandir wala case. You might be knowing about that. So उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि ये इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज और इतनी बेसिक चीज़ है कि भाई दोनों धर्म के लोग एक पार्क में जाकर बैठ के कन्वर्स करके they can clarify the things. Yeah. You do not even need the judiciary to get into it. Exactly. So Supreme Court also believes in the fact that conversation कितनी बड़ी power है. So I believe कि भाई until you won't converse, and please do not ऐसा insert the ego in between, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, either ego और conversation. या तो आप ईगो रख लो, रिलेशनशिप भाड़ में चला जाएगा, या फिर आप कन्वर्सेशन कर लो, रिलेशनशिप बच जाए. ईगो रखनी पड़ती है नीचे. Definitely you have to put the things down. And see, I believe that if the other person is very much important to you, you should not add ego in between. You should not let that particular ego to come in between you. The relationship between you and the other person, not between you, the other person, and the ego. Exactly. दो लोगों का that particular thing has to happen. Has it ever happened to you as well that you haven't talked to the other person just because? Yeah. Can we just know anything about that? एक बहुत बार ऐसा होता है, फील कि मैं बोलूंगी तो क्या ही सोचेगा सामने वाला, एंड देन द थिंग कि ऐसे छोटी बातों का बुरा लग रहा है, तो आई जस्ट डोंट कन्वे इट टू देम. बट बाद में आई रियलाइज कि इट शुड बी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक सेव द बॉन्ड. यू शुड स्पीक. And has it ever happened that after talking, the things have been much more Yes, clarified? better, because कि भाई like- सामने वाला तो कुछ और सोच रहा है, एग्जैक्टली. आई गॉट टू नो कि सामने वाले के मन में तो ये सब था, ये सब था, और मैं कुछ और सोचे जा रही थी. So this is the actual power of talking. This is the actual power of conversation. Conversation brings clarifications to the relationship. Exactly. The more you converse, whatsoever the biggest, take for an example, particular doubt you might be having on the relationship, like the partner of yours, that he might be cheating or she might be cheating on you, go and have a word. ऐसे कोई तीसरा बंदा तुम्हें आकर कुछ कहानी सुना रहा है, do not do that until you won't be having. Misunderstandings होती है फिर. Indeed, misunderstandings होती है, but the thing is, first go and talk to your partner कि भाई ये चीजें मेरे को पता चली हैं. I do not believe the rest of the world. I just believe in you because I am in a relationship with you only, right? And this is not at all, not only confined to the romantic relationship. दोस्ती में भी है, फ्रेंडशिप वगैरह में भी है कि भाई बहुत सारे ऐसे दोस्ती वगैरह होते हैं, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे खत्म कर देते हैं कि भाई मेरे को ये पता चला कि तू मेरे बारे में ये बात कर रहा है या कर रही है, सो लेट्स नॉट टॉक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड वी डू नॉट, आई एम ब्लॉकिंग यू एंड दिस एंड दैट. अरे भाई पहले देख तो लो कि वो सच में था, या क्या पता तीसरा वाला बंदा जो विभीषण बनाओ तुम्हारे बीच में दरार डाल रहा. People do not want successful bonds right now. They want कि भाई, हाँ, and the thing is जितना लंबा bond होता है, people are indeed very what we can say, they are very surprised or maybe shocked, we can say कि भाई इतना 10 साल से 12 साल से कैसे जानते हैं. Wow, that's nice. But if they see either of them doing good, so they believe कि भाई इस bond में अगर मैं भी घुस पाऊँ, अब वो उसको तो उसको साथ में रखते हो तो नहीं घुस सकते, तो एक को हटाना पड़ेगा. So many a times it does happen that people do this particular thing. So for that particular thing, we are supposed to have conversation, so that the other third person should not enter ऐसा कभी भी. This is very necessary. What's the difference between talking and truly communicating? What do you think? See, a very good set of questions. I would rather appreciate this particular platform. It is indeed a very good. There are certain questions that are indeed very good, and they might be connecting with the gist, right? Talking and actual interaction you are talking about, right? See, basically, when a person is just normally having a word, right? They are not at all including their feelings, or they're just delivering what exactly is going on, right? They are not being themselves, right? But the moment when you are having an actual interaction with someone, you will be having emotions, you will be having utmost clarity, you will be having whatsoever thought will be going, or whatsoever thought is going on in your upper part of the head. So all these things are necessary, and I believe that the latter one that you have mentioned, the actual interaction truly communicating is very necessary, right? Yeah. Emotions वगैरह has to be there, so that the other person should be able to actually assess कि भाई सामने वाला
सिर्फ डिलीवर कर रहा है या फिर देयर आर सर्टेन इमोशंस आर अटैच्ड विद दैट, which is very necessary. Just for the sake of talking नहीं Indeed, because the thing is without emotion जो हमारे, आप हमेशा ये चीज देखना कि कभी भी whenever ऐसा कभी हुआ होगा कि भाई WhatsApp के ऊपर जो बातें चल रही होती हैं, चैटिंग वाला चीज, we do not know the tone. सामने वाला कह रहा है कि भाई जो है they have written something, right? We do not know the actual tone of them. Exactly, sarcasm में बोल रहे हैं, Sarcasm में बोल रहा है, actual में बोल रहा है, क्या ऐसा, we do not know that ना. So उसकी वजह से जो डिसीजन व्हाट्सएप चैट या इंस्टा चैट के बेसिस पे जो डिसीजन बनाए जाते हैं, वो भाई वी शुड नॉट रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज वी डू नॉट नो द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द पर्सन, वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, वी डू नॉट नो देयर थॉट प्रोसेस, वी डू नॉट नो देयर इमोशंस. सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट एक्चुअल दैट interaction wala cheez has to be there along with the emotions, because emotions also matter a lot, right? So yeah. How has social media affected the way we talk to each other? I believe that social media ने यार थोड़ा Interaction कम कर दिया, बहुत कम कर दिया मेरे भाई. मतलब the thing is I have seen this particular thing that the people are sitting with each other, but they are on their phones. Right, they are on their Insta or their WhatsApp and ज़्यादा important हो गए हैं. indeed, but the thing is कि they are not spending that quality time with each other. Rather than that, they are spending that time on this brick, or what we can say, the small bricks. So the thing is, this should not be happening. This is indeed actually affecting the quality time that has to be there between the person, the two people who are in a relationship or whatsoever. So I believe that there has to be a clause that when you are sitting with your loved ones, you are supposed to keep your phones on the flight mode, or you are supposed to keep your phones aside. Yeah, right. Even if you are having a family dinner, तो उस पे भी सब phone पे लगे होते हैं. Exactly, this is the thing, and this should not be happening, right? I have seen this particular thing in certain families. I know that the moment when they gather, right, at night, then the whole family, they have a bowl, and all the phones are getting collected there only, right? And that particular bowl is in the separate room, so that the people should have an interaction with each other. Family time has to be there. Exactly. This is, I believe, is one of the very important things that have been done by certain people that I know. So I have to cherish this particular thing कि भाई कितना बढ़िया चीज है ये. मतलब But people, I think like हमें कोई क्यों बोल रहा है कि we should keep our phones away, we should like अंदर सोना चाहिए. नहीं रियलाइज हो रहा ना मेरे भाई. Exactly. लोगों को ये नहीं रियलाइज हो रहा कि भाई हमारा जो क्वालिटी टाइम जो लोगों के साथ बीतना चाहिए वो हमारा फोन पे बीत रहा है. We are not at all understanding because we are not at all conscious. Usual screen time सबका 12-13 घंटे होता है. आराम से है, आराम से है, आराम से. The thing is, we are not at all conscious about the same. This is the one of the not that much appreciable thing. कि भाई जो है कि भाई आप सामने वाले के साथ टाइम ना स्पेंड करके आप उस पर्टिकुलर चीज पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड द मोमेंट व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग इज अवे, देन यू आर एक्चुअली इन द रियल वर्ल्ड. और वो कब होता है? जब हमारा फोन चार्जिंग पे होता है. Exactly. This is the thing. So this should not be happening. So we should realize the fact, we should prioritize the relationship, we should prioritize the bonds over these things. Nicely said, sir. What do you think? How important is listening as a part of talking? My goodness, क्या बात है. Listening is very necessary. Listening is indeed one of the vital parts, I would rather say, as far as conversation is concerned. Right. Take for example, if we talk about efficient communication. Right. Efficient communication is like if a particular person A is saying something, person B has to listen. Right. And when a person B is saying something, the person A has to listen. This is the actual efficient communication is. So, जो listening वाला portion है, सुनना भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि people believe कि भाई मैं सामने वाले की क्यों सुनूं, क्योंकि मैं ही सही हूँ. ऐसा नहीं होता भाई. No, not at all. But I believe that relationship basically works on trust, patience and listening. And conversation obviously. तो listening इतनी बड़ी पावर है जो हमें पता ही नहीं है हमारे पास. We should acknowledge that particular thing कि भाई listening वाला चीज has to be there. And मैं इस चीज को स्पेसिफिकली लड़के या लड़की के बारे में नहीं बोल रहा कि भाई लड़कियां कभी नहीं सुनती या लड़के कभी. ऐसे लड़के भी बहुत सारे हैं जो अपने आप बहुत ज्यादा फन्ने का समझते हैं कि भाई मैं, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है और मैं सुनूंगा किसी के नहीं, लेकिन सबको मेरी सुननी है. क्यों भाई, कौन है आप? ऐसा भी तो हो सकता है. हाँ, इंडीड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. एंड मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में लोग सुनना कम कर दिया लोगों ने.
राइट लोगों ने ये चीज है कि भाई मैं ही बोल लूं, मेरा सुन लो और मैं जा रहा हूं। और भाई इट इज जस्ट दैट द मोर यू लिसन, the more you what we can say, the more you absorb from the environment of yours, you will be a well educated and well known person, right? जितना आप सुनोगे लोगों के बारे में, right, आपको उतना ज़्यादा तजुर्बा आता चला जाएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्पीकर थे लोकसभा में, पता नहीं शायद राज्यसभा में, जावेद अख्तर, right, and he has written he has been a very big lyricist. So in the Vidhan Sabha, sorry, Lok Sabha only, he said this particular thing कि भाई समझदार व्यक्ति वो है जो अपने तजुर्बे से सीखता है, लेकिन उससे ज़्यादा समझदार वो है जो दूसरे का तजुर्बे से सीखता है, राइट। सो वो दूसरे का तजुर्बा कैसे आएगा आपको, जब आप सुनोगे सामने वाला। सो लिसनिंग इज वेरी मच नेसेसरी, और वो हमने बहुत कम कर दिया। तो वो कहाँ से आता है? ईगो से, कि भाई मेरे अंदर ईगो है, मैं क्या सुनूंगा। अरे भाई थोड़ा सा अपनी ईगो को नीचे रखो ना, दिस इज वेरी नेसेसरी। What are your opinions on AI therapists? Like people are just expressing their feelings to ChatGPT. Like what are your opinions on that? See, I do not believe that this AI therapy wala cheez is that much efficient, right? It might be very much precise, but actual ground level पे जो human emotions हैं, जो thought process is going on, वो सारी चीज़ तो मेरे भाई human से समझ सकते हैं ना। How is it even possible कि चैट जीपीटी या AI वगैरह उस चीज़ को समझ पाएगा? It is just a machine. So I believe that if you are suffering from something like that, you should not rely on these things. अब take for an example, अगर आप AI, चलो AI के बारे में तो बाद में बात करेंगे, गूगल वगैरह पे आप लिखते हो भाई I am having cold or cough or something, वो आपको उसका कॉन्सिक्वेंस बताता है कि आपको कैंसर है। तो You cannot rely on these machines, right? आप कोल्ड और कफ का वो तुम्हें बता रहा है कि भाई कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। So these things are not at all that much human. So if you actually want, you are seeking for help, do not go for these chat GPT or AI. You go for a therapist or go for someone who actually cares about you, right? That particular person will be able to help you more as compared to this AI therapy. ये सारी चीजें मतलब मेरे को तो I do not trust and I do not believe in all these things. Have you ever done anything like that? No, I don't believe in this because I think an AI cannot diagnose me or they cannot tell me like what to do. A human has emotions and they will understand us more better. Indeed. That's what I think. I have not done, but I have my friends that actually do this. And the second most thing is AI हमारे emotions को तो assess नहीं कर सकता। Exactly. हमारी बहुत सारी चीजें thought process का नहीं पता कर सकता हो। और एक्चुअली में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। टेक फॉर एग्जांपल, इफ वी आर सिटिंग टुगेदर, यू आर सेइंग समथिंग, टेक फॉर एग्जांपल जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बैक दिस हैज हैपेंड दैट यू आर सेइंग समथिंग एंड यू लाफ्ड। सो आई एक्चुअली एनालाइज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैड अ सर्टेन टोन ऑफ सरकाज़म। Exactly. भाई ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एआई कहां से कर लेगा? Exactly. उसके लिए यू नीड एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। AI cannot replace therapy, I believe. नॉट एट ऑल। मतलब आई तो बिलीव कि भाई तुम्हें पंगे वगैरह लेने या कुछ टाइम पास करना तो एआई से बात कर लो, ठीक है, बट एक्चुअल वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, राइट? सो मतलब मैंने मतलब आई हैव तो हैड अ वर्ड विद अ कपल ऑफ पीपल एंड दे हैव आल्सो आस्क्ड कि भाई एआई थेरेपी इज गुड। आई से कंप्लीट बिग फैक्ट नो, Exactly. कि भाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अगर एक्चुअल काउंसलर के पास नहीं जाना कोई बात नहीं, बट एआई थेरेपी में मत जाओ, राइट? तो उतना रिलायबल नहीं। Like there was a case कि like एक लड़का ने ChatGPT को बताया that I want to suicide and all, तो ChatGPT एक certain number of times तक बस बोलता है कि no, then वो बाद में उनको एक सुसाइड नोट लिख कर दिया था ChatGPT ने। अरे वाह, क्या बात, वाओ। So वो ऐसे ही फंक्शन होते हैं। So that is so wrong. Because that particular thing has been programmed to make our stuff easier, Yeah. right? So And they tell us what we actually want to hear. So that's so wrong. भाई ये machines वगैरह can never replace humans. Exactly. मतलब people are saying AI will replace human, ऐसा नहीं possible। जो काम इंसान कर सकता है वो नहीं कर सकते ना ये AI वगैरह Humans यार। can feel emotions. मतलब They can you be in cannot- a relationship with a robot? How is it even Exactly. possible? Can you say this particular robot is my boyfriend or girlfriend? How is this even possible for you? So नहीं, if you are not going for a counselor in the necessary times, you should not even go for any machine or Yeah, something. therapy. Never. Agreed. Why is talking often mistaken as a sign of weakness? Because of the perspective that the other person has, because of the narrative that is in the air,
कि भाई सामने वाला अगर बात करने आ रहा है मतलब वो गलत है और वो झुका है, देख लो मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने नहीं बात करी, मैं कितना सही हूँ। वो आया सामने से, वो गलत था, उसे पता है कि वो गलत था इसलिए वो आया। ऐसा नहीं है। लोग अपनी रियल साइड दिखाना डरते हैं बिकॉज़ दे थिंक पीपल विल कंसीडर देम वीक। एग्जैक्टली। मेन चीज क्या है कि सामने वाला जब आपके सामने आ रहा है तो वो गलत हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो आपके रिलेशन को वैल्यू कर रहा है। एग्जैक्टली। दिस इज व्हाई दे आर कमिंग टू यू। अगर उन्हें भी आपकी तरह रिलेशन की वैल्यू ना हो तो वो आपके पास ना आए, ना आप उसके पास हो, थोड़े टाइम बाद रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे तुम लोग? मतलब मेरे को तुम्हारी भी एज में मेरे को ये चीज एज से जाननी है, मेरे को ये चीज कि है मतलब व्हाई डज दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच प्रेवलेंट कि भाई वो आएगा तो आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ईगो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल, कि सामने वाला ही आएगा कि मैं क्यों झुकूं, वो वाली चीज हो जाती है। और ये चीज इतनी ईगो लेके कहाँ जाओगे तुम लोग? ये तो आई डोंट नो। मतलब have you ever realized, मतलब I'm not here to command or any problematic तुम्हें realization करवाने के लिए नहीं बैठा। We are just having a very fine and frank chit chat right now. But the thing is, I just need to know कि भाई have you ever realized this thing कि भाई has it been making any kind of dent in the relationship? एग्जैक्टली, आई फील कि वही चीज रहती है कि मैं भी नहीं बोलूंगी, वो भी नहीं बोलेगा, एंड अगर मैं बोलूंगी तो मैं वीक लगूंगी, तो वो वाली चीज होती है। तो ये मेरे साथ भी हुई है। So have you ever tried to have conversation, keeping aside your ego? ईगो वाली बात इट्स डिफरेंट। आई फील इट्स लाइक आई विल बी कंसिडर्ड वीक, कि मैं अपनी दिखा दूं कि मेरे को ये चीज बुरी लगे, कितनी छोटी चीज है कि मेरे को बुरी लग रही है, तो सामने वाला मेरे को वीक समझेगा। बस ये वाली चीज होती है, एवरीबॉडी थिंक्स, और सबको ऐसा स्ट्रांग दिखाना है अपने आप को, कोई अपनी रियल साइड दिखाना नहीं चाहता। सो आई फील दैट्स द प्रॉब्लम। ये एक्चुअल नैरेटिव है which we are supposed to change. Right. The thing is, take for an example, if we are going for a talking thing, right? So the very first thing that we are supposed to consider is कि भाई मेरे लिए सामने वाला क्या नैरेटिव रखेगा, that has to be secondary. ये रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, that has to be the primary thing. और अगर ये रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो even if I'll be considered wrong, even if I'll be considered a bad person, even then as well at least I should go and talk. यू नेवर नो कब आपकी चीजें बेटर हो जाएं, यू नेवर नो, टॉकिंग से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्लैरिफिकेशंस हो जाते हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा, ऐसा भी तो होता है काफी बार, कभी सामने वाला कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हैं, बट व्हेन यू सिट एंड टॉक, सो तब म्यूचुअल क्लैरिफिकेशन होती है, तब पता चलता है अच्छा जी ये दिक्कत है। बट आप अपनी ईगो लेके बैठे हुए थे, तो भाई फिर तो अपनी ईगो ही रखो, फिर रिलेशनशिप तो रहने दो। So how do you think we can make people feel safe or comfortable, like to express themselves? See, this is the responsibility of their own selves as well, and with the partner they are with the person they are in a bond with they are in a relationship with. Take for an example, just now only in a question which I answered, you mentioned this particular thing कि भाई people hesitate. सो ऐसा भी तो होगा ना कि वो हेजिटेशन क्यों हो रही है, शायद पार्टनर की वजह से, सामने वाले की वजह से, क्योंकि सामने वाला शायद उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करता होगा। क्या यार तू हमेशा ऐसे बोलती रहती है, या फिर क्या यार तू हमेशा अपने रोने लेके आ जाती है मेरे सामने। अरे भाई एक बार सुनो तो सही, वो आपके सामने लेके आ रही है रोने, या फिर वो कुछ आपसे बात करना चाह रहा है, तो दे आर कंसिडरिंग यू समथिंग ना। सो डू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट इफ दे आर ओपनिंग देमसेल्व्स in front of you, so please do not restrict. They are considering you something, which is why they are sharing that particular thing with you. और आप सामने से ये कह रहे हो कि भाई नहीं मेरे सामने मत लेके आया करो ये सब, मतलब मैं नहीं सुन सकती या मैं नहीं सुन सकता ये सब, और तेरे पास और कोई ढंग की बात नहीं होती है करने के लिए, हर बार ये कलेश ही आ जाते हैं, रोने ही आ जाते हैं। एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा बना रखा है कि भाई लड़कियां हमेशा कलेशी होती हैं, लड़कियां कलेश करती हैं, ये हो भाई। द थिंग इज, देखो ऐसा है कि मतलब आई एम नॉट एक्चुअली जेंडर बायसिंग वाला चीज़ मैं नहीं कर रहा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं लड़कों को भी गलती हो, क्यों समझना ही नहीं समझना चाहते। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हम उस एक्चुअल पॉइंट को या तो समझना नहीं चाहते, या फिर हमारे समझने की उतनी जो है हम उतना एफर्ट नहीं डाल रहे उस चीज़ में कि भाई सामने वाली, ठीक है कोई बात नहीं, काफ़ी जगह पे ऐसा होता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, बट हर बार लड़कियां गलत नहीं होती, राइट। हर बार ऐसा नहीं होता कि तुमने एक नैरेटिव बना दिया कलेशी है तो भैया हमेशा कलेशी नहीं होती है, काफ़ी बार लड़कों को भी गलती होती है, राइट।
एंड द थिंग इज लड़के इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, लड़के उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। सबसे पहली चीज, हम तो कभी कलेश ही नहीं करते, हम तो हर बार चुपचाप मानते हैं। अरे भाई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डुअल साइड से भी तो हो सकती है, गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद आप गलत हो और इसलिए सामने वाला कह रहा है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट लड़कियां, लड़के भी बहुत बार कलेश होते हैं। सामने वाले का बिहेवियर तुम्हारे एक्शन से ही लाइक चेंज होता है। इंडीड इंडीड इंडीड, दैट इज द थिंग। एंड द थिंग इज मेरे को ऐसा लगता है कि लड़के भी काफी बार ऐसा होता है कि भाई कलेशी होते हैं, जबरदस्ती की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। तो इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टुवर्ड्स लड़कियां, इट इज फॉर द बॉयज एज वेल। एंड मतलब आई बिलीव कि आपको उतना स्पेस, उतना रूम आपको पार्टनर के लिए क्रिएट करना चाहिए कि भाई दे कैन बी देमसेल्व्स, कि भाई मैं बाकी दुनिया से लड़ झगड़ के अपना वर्क वगैरह या फिर मेरी पढ़ाई वढ़ाई सारी करने के बाद दिस इज द टाइम वेयर आई कैन बी विद माई पर्सन, लेट इट बी योर ब्रदर, लेट बी योर सिस्टर, लेट बी योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और योर फैमिली, योर फादर, योर मदर। लाइक उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यू कैन बी योर सेल्फ, यू शुड फील सेफ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी है और आपके सामने वाले की भी है जो आपको सेफ फील कराएगा, राइट। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे है? वुड यू लाइक टू ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? आई फील लाइक हमें वो देना चाहिए, लाइक हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट्स ऑल। कि हमें अपनी ईगो साइड पे रख के बोल देना चाहिए। आई फील वो बॉन्ड सेव कर लेगा rather than just उसको खराब होने से बचा लेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इनटू दिस कि भाई उस चीज को हम कैसे बचा सकते हैं कि भाई हम ओवर थिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग आई फील इज नेचुरल, लाइक इट इज नेचुरल बिकॉज नहीं ओवर थिंकिंग इज ठीक है, इट इज मोर ऑफ नेचुरल थिंग, बट द थिंग इज हमें उस चीज को कन्वे करने से पहले 500 बार सोचना नहीं है। इफ वी आर विद पर्सन वी आर वेरी कंफर्टेबल विद, सामने वाले ने ऐसे वो करा हो कि वी हैव टू थिंक सो मेनी टाइम्स, तो उस चीज के बारे में उसको क्लैरिटी दो ना, उससे क्लैरिफिकेशन करो कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को ये वाली चीज आपको पसंद नहीं आती है, राइट। और ये चीज को मेरे को आई वांट मोर ऑफ अ मॉडिफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप योर ओन सेल्फ हाउ यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल इज कि भाई आप उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर आपको उस चीज को उसके साथ बात करनी है तो यू शुड नॉट थिंक कि भाई ये सामने वाला क्या सोचेगा, ये है वो है 500 चीजें, नहीं। लाइक बहुत बार ऐसा होता है, लाइक आई हैव सीन दिस कि मैंने देख बहुत बार बोला कि मैं कोई चीज हो रही है या परेशान हो रही हूँ मैं चीज से, तो हमेशा उसका आउटकम एक लड़ाई होती है। तो बंदा सोचेगा मैं क्यों ही बोलूँ जब देयर इज नो आउटकम ऑफ दिस। So sometimes it's other person's fault too. Indeed. So the thing is, how can we work on this particular thing is when the things are going better, right? There is no college going on, there is no problematic situation going on. At that very moment, openly talk to the person. Sit with them. You are in a good mood, other person is in a good mood, right? You are at a certain place, take for an example a cafe or a garden or whatsoever. Go and just talk. कि भाई ऐसे से करके आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ कलेश, आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें मेरे को थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और थोड़ी सी मेरे को और ज़्यादा स्पेस चाहिए। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द रिलेशनशिप और द बॉन्ड दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, बट क्योंकि आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड बॉन्ड टू वर्क, सो आई वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी वर्कड अपॉन। तो अगर सामने वाला समझदार होगा तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड, और अगर नहीं समझदार होगा तो तुम्हारी किस्मत खराब है। Exactly. तो फिर तुम्हारी गलती है ना, तुमने उसको खराब क्यों पसंद किया। Exactly. हाँ। So, in your opinion, can talking truly change lives? Indeed, very big thing. Like it many times it has happened that the people when they open up, right? So actually में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके नैरेटिव गलत चल रहे होते हैं। Take for an example, there are two people. Boys के बारे में बात करता हूँ। एक लड़का है, he is in a relationship with a girl and the other person is single. They are friends. ठीक है जी। So जो लड़का है who is in a relationship, so वो ये देख रहा है कि यार जो that girl is saying, काफ़ी बार ऐसा होता है कि शायद इसको ऐसा लग रहा है कि शायद she is he is being cheated, right? Or he is being not given that much amount of attention as he wants. उसको अपना एक मी टाइम चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसको और ज़्यादा स्पेस चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट वो उसको ये दिखता है कि शायद मेरे को कहीं ना कहीं चीट कर रही है, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। ये नैरेटिव चल गया। अब वो उस चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाता है रिलेशनशिप पे, लड़ाई हो जाएंगी, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। बट द थिंग इज वो समझदार उसका जो दोस्त है वो एक बार गलती से कहीं बैठे होते हैं तो वो बात कर रहा होता है कि यार ऐसे ऐसे करके ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट यार वो उतना अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अब मेरे को डाउट हो रहा है कि शायद वो चीट कर रही है मेरे को।
सामने वाला ये बताता है उससे कि भाई एटलीस्ट गो एंड हैव अ वर्ड, क्या पता वो चीट ना कर रही है, उसके पास एक्चुअल टाइम ना हो। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ भाई उसकी एक्चुअल में फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, फाइनेंशियली शी इज़ नॉट दैट मच अवेलेबल, शी इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, और उसकी जॉब भी अराउंड 6 से 7 या 8 घंटे की है। दीज आर सर्टेन रीजन जिनकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, बट शी इज़ नॉट पुटिंग एनी क्वेश्चन मार्क ऑन द रिलेशनशिप। सो भाई अब लड़के को समझ आ गया, अब वो रिलेशनशिप को ध्यान से रखेगा, नहीं तो पहले वो ये समझ रहा था कि भाई चीट कर रही है और समथिंग इज हैपनिंग। सो पहले टॉक, वही चीज आई ऑलवेज से, देन मेक अ डिसीजन। पीपल नाउअडेज व्हाट दे डू, पहले दे मेक अ डिसीजन देन दे टॉक। पहले दे हैव ऑलरेडी प्री कंसीडर्ड नोशन कि ये गलत है, अब मैं इसका जो सिर खोल दूंगी सामने वाले को। अरे भाई पहले उसको सुन तो लो, पहले हैव कन्वर्सेशन देन ओनली यू मेक अ डिसीजन ना, देन ओनली। अब जो कोर्ट वगैरह है, हाउ डू दे वर्क, पहले थोड़ी ना फांसी की सजा दे देते हैं फिर कहते हैं हाँ भाई गलत था या सही था। पहले दे एनालाइज, दे एसेस द थिंग्स, पहले दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। राइट नाउ पीपल आर सो मच फास्ट पेस्ड, they do not want to talk, they do not want to have any kind of conversation, they do not even want to listen। मैंने कहीं से सुन लिया, चलो भाई यही सही है, ये क्योंकि ये सही है, बॉयफ्रेंड बाद में आएगा, ये मेरी सहेली बहुत सारा सही कह रही है, मैं इस पर ट्रस्ट करूंगी, ठीक है, ये गलत बंदा है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, खत्म। अरे भाई सुन तो लो, क्या बताओ लड़का तुम्हारे लिए ही ठीक ठाक हो, या फिर वो लड़का ही तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहता हो, प्रोडक्टिविटी। हाँ एग्जैक्टली। So we should not make any narrative because of the whatsoever the rumors are going on, whatsoever is in the air. We should not be going according to that particular thing until we are talking to that particular person. Rightly said, sir. What are the emotional consequences of bottling things up? Emotional consequences of Bottling things up, like not speaking, not expressing yourself. What do you think can happen? बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं भाई। इट माइट लीड टू पर्टिकुलर पर्सन कि भाई पाइल अप हो गया है बहुत सारी चीज़ें एंड दे आर नॉट टॉकिंग, सो अब वेंट आउट तो हुआ ही नहीं ना, राइट। सो अब उसके लिए आपका कोपिंग मैकेनिज्म, राइट। टेक फॉर एग्जांपल जस्ट नाउ यू हैव सेड दैट हाउ डू यू कोप, यू लिसन टू म्यूजिक और यू स्लीप और यू राइट डायरी। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हाउ वुड यू बी कोपिंग विद दिस स्टफ। देयर आर सर्टेन पीपल, देयर आर masses out there, they do not even know how to cope. So that might lead to anxiety, that might lead to depression as well, because आपका दिमाग तो continuously काम कर रहा है। overthinking anxiety से connected, anxiety depression से connected है, तो फिर depression connected है, तो once you are mentally not stable, that eventually will lead to physical instability। आपका वेट कम होने लग जाएगा, आपको बाकी सारी दिक्कतें आने लग जाएंगी। So the thing is, मतलब I believe कि भाई फिजिकल आपको प्रॉब्लम है तो इतनी कोई खास प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, दैट माइट बी क्योर्ड। बट अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है तो वो चीज़ फिजिकली भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका दिमाग ही थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा ना, दिमाग ही आपका अफेक्टेड हो गया, आप उतना एफिशिएंटली नहीं सोच पा रहे हैं चीज़ों को। सो वंस द थिंग्स डू नॉट गेट things are not getting that much space to go out or something, you're not talking to the person and you're not having that much amount of space or something, so I believe कि भाई वो चीज़ बहुत ख़राब है, which is why I always say converse, do not keep the things to yourself। चाहे जितनी मंजिल लड़ाई हो जाए, कलेश हो जाए, जो भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी सोचता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, आपने तो अपना निकाल दिया ना, आपकी तरफ से चीज़ें साफ़ हो गई। अब मेन चीज़ ये है कि क्योंकि आप चीज़ों को अपने अंदर रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाए एंड काउंसलर वगैरह के पास जाने के बाद भी चीज़ें उतनी बेटर ना हो। आई हैव सीन पीपल, दे आर पेइंग like 1200 or 1500 an hour to counselor and they are just getting nothing out of that। so I believe कि भाई काउंसलर के साथ बैठने से पहले आप अपने साथ बैठो, right? Indeed, जैसे I would like to quote this particular lines mentioned by one of the biggest comedian of our country, Anubhav Singh Bassi। He has mentioned in one of the TED talk made by him, in which he said कि भाई आप जब अपने से दूर हो जाओगे तो फिर अपने पास वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। Whatsoever career you want to pursue, do that। Whatsoever career or whatsoever study you want to do, go for that particular thing। In whichever line you want to go, you can do that, you should do that। But ये सब रहते हुए अपने से दूर नहीं आना है, अपने साथ इंटैक्टेड रहो। अगर अपने से दूर चले गए तो अपने आप को वापस लाना इतना मुश्किल हो जाएगा, यू डू नॉट नो कि भाई उसको मंथ्स लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं, कितने साल लग सकते हैं, यू नेवर नो। There should be some me time.
There has to be something. You should have something with your own self. And it is not only confined towards me time only. It has to do everything with the vent out mechanism. It has to do everything. You should know कि cope up कैसे हो. हमेशा आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं चलेगी. सबकी जिंदगी में दिक्कतें आती हैं. राइट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं आपके साथ. सीट हो जाते हैं, या फिर रिलेशन खत्म हो गया, या फिर दोस्ती खराब हो गई, या फिर जॉब से निकाल दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए. तो ऐसा नहीं है कि भाई इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओ एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट. पीपल डू नॉट डू इट. दे डू ओवर थिंकिंग, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वहां से बाहर आना इतना मुश्किल हो जाता है. फिर काउंसलर के पिताजी भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते वहां से. हैज इट एवर हैपेंड टू यू एज वेल? Not really. Like I do. पहले मैं bottle up करती थी emotions, but then what like situation बिगड़ गई थी because I lose much weight and मेरा पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान नहीं लग रहा था. And then बाद में कुछ टाइम बाद I realized on my own that I have to speak to somebody so that I can at least get back to the track. So yeah. So वो जो बॉटलिंग अप वाली चीज हो रही थी, तो उस टाइम पे डिडंट यू रियलाइज एट दैट वेरी मोमेंट ओनली दैट आई शुड टॉक? आई डोंट थिंक सो. Why? क्योंकि ऐसा पता ही नहीं चलता कि इतना इट्स लाइक अभी नहीं बोल रहे हैं क्या ही हो जाएगा. सो इट्स जस्ट ऐसा टाइम के साथ होता रहता है एंड देन एकदम से जब वो फटता है देन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके. सो वही वाली चीज है कि भाई अगर हमारे पास आज टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, कल भी उसने पढ़ाया, हम कह रहे हैं चलो 1 महीने बाद देख लेंगे, वो 1 महीने बाद इतने सारे टॉपिक पाइल अप हो गए हैं. राइट, अब वो इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे, दिमाग खराब हो जाए. दिस इज वेरी मच स्ट्रेट अवे लिंक टू द साइकोलॉजिकल स्टफ ओनली. कि भाई जैसे जो इशू एक बार आया है उसे देन एंड देयर क्लैरिफाई. बॉटलिंग अप होता चला गया तो भाई फिर वो तुम्हारा दिमाग खराब होता चला जाएगा. फिर तुम्हारे दिमाग में होगा भाई ये एक चीज संभालूंगा दूसरी संभालूं, इतने सारे इश्यूज होंगे, कैसे क्लैरिफिकेशन होंगे. सो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. रिलेशनशिप्स में अगर किसी चीज कुछ हुई तो लोग बोलते नहीं है, देन जब लड़ाई होती है तो वो एकदम देन एग्जैक्टली हाँ. बट आई बिलीव दैट एक्चुअल हेल्दी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग रिलेशनशिप इज कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये पूछेगी कि खाना खाया नहीं खाया, चीजें बढ़िया चल रही है नहीं चल रही. देयर माइट बी हार्ड टाइम्स एज वेल वेयर यू हैव टू पुट अप दीज पर्टिकुलर थिंग्स. कि भैया आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम आई, या लेट इट बी योर ब्रदर और सिस्टर और योर कजन और योर फ्रेंड और समथिंग, तो गेट दैट पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन देयर एंड देयर ओनली. कि भाई ये ऐसे ऐसे करके दिक्कत थी, आज ऐसे हुआ, मेरे को ये वाली बात आपकी समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई है. आई वॉन्ट कि आपकी एक्चुअल इंटेंशंस क्या थी, और अगर खराब थी, हाँ, व्हाई डिड यू से दैट? पाइल अप करते चले जाओगे तो आपके भी अंदर यू वोंट बी योरसेल्फ ना. आप भी वो सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या पता इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं हो. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज ये है, आप उस पर्टिकुलर लेवल पे उस बंदे से उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे जैसा आप पहले कर रहे थे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, यार ये बंदा तो ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे. क्लैरिफिकेशन तो आपको मिली नहीं, आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं. आप तो अपने वही नैरेटिव से चल रहे हो, प्री कंसीव्ड नोशन से, कि भाई ऐसे ऐसे करके ये मेरे बारे में गलत सोच रहा था, या इसने ऐसे ऐसे बोला है, अब तो मैं इसको मजा चुका के दिखाऊंगी. अरे भाई पहले बात तो करो, क्या पता सामने वाला कुछ और सोच रहा हो, या फिर अगर वो गलत भी है तो क्या पता वो अपॉलॉजीज वगैरह करके चीजें क्लैरिफाई हो जाए. एग्जैक्टली. दिस इज इवेंचुअली वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिलेशनशिप. These are certain basic minute detailing which we never think. Why? Because we are not ready to listen. We have our ego on the primary preference, and we never want to talk, to initiate to talk. So these are certain things which are very much connected. So the only resolution, or मेरे को ऐसा लगता है कि the only solution to this particular thing is to converse. एक बार कन्वर्स करो, बात खत्म हो जाती है. मतलब कन्वर्स वो चूर्ण के बराबर है जो खा के आप किसी भी मर्ज की दवा जो है उसको ठीक कर सकते हो, किसी भी मर्ज को ठीक कर सकते हो. यू कैन इजीली डू इट. एग्जैक्टली. व्हाई डू यू थिंक कि जो इंडियन चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, एंड व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? यार दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड द थिंग इज आई बिलीव कि आज की तारीख में हमारे अब वाले जो पेरेंट्स हैं, राइट, करंट जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े थोड़े से चेंज हो रहे हैं, and they are becoming more friends with the children they are having. पहले के टाइम में बेसिकली क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी उतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थी. दे हैड बीन वेरी नैरो माइंडेड कि भाई सामने वाला बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ाई में है, उसके अलावा अगर क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगा, पढ़ेगा. बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड है, छोड़ो, पढ़ेगा. रैप करना चाहता है, नहीं, पढ़ेगा. अरे भाई अब मेन चीज़ ये है कि
पहले की जो फैमिलीज और पहले की जो इंडियन बेसिकली इंडियन सोसाइटी, आई वुड लाइक टू कोट दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि बच्चा जो है वो उतना ज़्यादा फ्रैंक इन्हीं कारणों की वजह से नहीं था पेरेंट्स से, एंड देयर हैड बीन अ जनरेशनल गैप आज भी है, बट बच्चा कनेक्टेड है पेरेंट के साथ। आज का बच्चा जो है वो पेरेंट को पेरेंट ना मान के अपना दोस्त मानता है। पेरेंट नोज कि मेरे बच्चे ने कितनी बार, मेरा बच्चा जो है वो कहाँ पर घूमने गया है, व्हाट आर द फ्रेंड्स उसके फ्रेंड। मेरे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे, जैसे टेक फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा है मेरा, उसके फादर जो है वो बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं, और वो मेरे को कहाँ से पता चला, उस बच्चे के फ्रेंड से। मतलब वो फ्रेंड जो है उसके घर पे जाते होंगे, एंड उसके फादर जो है वो नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करके एंड दे हैव। सो दिस इज द काइंड ऑफ level of attachment that has to be there, which might not lead to the problematic situation for the children, right? काफी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऑल्सो नीड देयर चिल्ड्रन, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स डू नॉट नो। सो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो उनके बच्चे हैं वो बहुत सारी चीजों में उनको सपोर्ट कर पाते हैं, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा चिल्ड्रन को ही, बच्चे को ही अपने मॉम या डैड की जरूरत पड़ेगी। मॉम डैड को भी काफी बार बच्चों की जरूरत, पेरेंट्स ऐसा ट्रस्ट दिखाते हैं तभी बच्चों ने सब बताते भी हैं। एग्जैक्टली। एंड अगर आप उस चीज में उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि भाई तेरे को यहाँ नहीं जाना, तेरे को ये नहीं करना, तेरे को ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो बच्चा फिर उतना दूर होता चला जाएगा आपसे, वो आपसे कन्वर्स नहीं करेगा। दे वॉन्ट टॉक टू यू। वाई? क्योंकि यार पापा को तो समझ नहीं आता, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। यार मम्मी तो नहीं, यार मम्मी से तो उतनी वो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें नहीं पता है यार, मम्मी को नहीं बताऊंगा। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट नो। फिर इवेंचुअली व्हेन दे एंड अप इन अ बिग ट्रबल, देन द मोमेंट व्हेन द पेरेंट्स गेट टू नो, फिर पेरेंट्स को पीट गया कि भाई जब हुआ था तब क्यों नहीं बताया। अरे भाई आपने उतना स्पेस दिया कि नहीं? पहले तो आपको उसका हल्का सा भी उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, और जब वो निकल गया है तो आप इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है, तो फिर अब आप उसको ऐसे कह रहे। जस्ट गिव देम स्पेस टू बी ओपन अप विद यू, वेरी नेसेसरी। So yeah, like that's it for this segment. How was your experience? It has been very nice experience, and I believe that the set of questions that had been asked are indeed very actual, जो जिसे कहते हैं जिस्ट, जिसे पकड़ा गया, दुखती रख पे हाथ रखा गया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि these types of things have to be there, like the whatsoever this RISE platform has been doing. So these things have to be there, क्योंकि basically आज की तारीख में we are in the fast paced life, we are not at all actually realizing what the minute detailing we should work on. So जैसे राइस प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं who are working on these things. So ऐसा होना चाहिए, someone, कोई तो जिंदा रहे हमारे बीच में जो इन चीज़ों को समझे। And the thing is, this particular thing is not only beneficial for me or for you. This definitely will be beneficial for the society and for the listeners or the people who are viewing and listening to this particular thing. So मेरे को ऐसा लगता है कि this has been a good thing, and thank you so much for having me at this particular platform again. And last time also I had been very much myself when I shared my own self. And how has the experience with you? I felt great. Like your answers were really honest, and आपने like students के perspective से भी बोला. You are not like कि मैं teacher हूँ तो मैं उसी उससे बोलूँगा. You like kept yourself in the students' point of view. So yeah, it was really nice. So yeah, that's it for this segment, and let's meet in the next episode. Thank you so much.